السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 3 جنوری 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 20 جمادی الثانی 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے آج چہارشنبے کی صبح جھارکھنڈ کے وزراء ہیمنت سورین کے پریس ایڈوائزر کے رانچی میں جاری مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں چھاپا مارا۔ ہیمنت سورین کے پریس ایڈوائزر ابھیشیک پرساد کے احاطے میں تلاشی کی کارروائیاں جاری ہے۔ ایجنسی ذرائع کے مطابق ابھیشیک پرساد اور صاحب گنج کے ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہوں سمیت 12 مقامات پر آج چہارشنبے کی صبح سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ جھارکھنڈ کے چیف منسٹر سورین کو گزشتہ سال 30 دسمبر کو ڈائریکٹریٹ آف انفورسمنٹ کی طرف سے ایک آخری موقع جاری کیا گیا تھا کہ وہ زمین کے ایک مبینہ گھوٹالے میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ ہیمنت سورین نے کہا کہ سمن غیر قانونی تھا۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کے دفعات کے تحت ED کے ذریعے ہیمنت سورین کو جاری کردہ یہ 7واں سمن تھا جس میں ان سے اپنا بیان ریکارڈ کرنے کو کہا گیا۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ What are we running after? What is it that we want our children to be? We found the answers at MS Education Academy. We integrate ethical values with modern education. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. عام آدمی پارٹی کے ذرائع نے آج چہارشنبے کو بتایا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال دہلی کے مبینہ شراب گھوٹالے کے معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں گزشتہ سال 22 دسمبر کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو تیسرا سمن جاری کیا تھا جس میں انہیں آج 3 جنوری کو ایجنسی کے سامنے حاضر ہونے کو کہا گیا تھا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کیجریوال نے ED کو اپنے جواب میں تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے اپنی تیاری ظاہر کی ہے، لیکن نوٹس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے آج حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ کیجریوال نے 2024 میں آنے والے پارلیمانی انتخابات سے پہلے انتخابی مہم سے روکنے کے اقدام کے طور پر نوٹس کے وقت پر مزید سوال اٹھائے ہیں۔ دہلی سمیت پورا شمالی ہندوستان میں شدید سردی کی لہر ہے۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سے نیچے گر گیا ہے۔ یہ نہ صرف دہلی بلکہ پورے شمالی ہندوستان میں سردیوں کی حالت ہے۔ گنگا یمنا کے میدانی علاقوں میں بھی سردی کی لہر جاری ہے اور کچھ علاقوں میں گھنی دھند چھائی ہے۔ یہاں کے بعض علاقوں میں سردی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پنجاب، ہریانہ، شمالی راجستھان، شمالی مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور یہاں تک کہ بہار اور جھارکھنڈ کے کچھ حصوں میں گھنے سے بہت گھنے کوہر کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوہر نہ صرف عام زندگی کو مسلسل رکاوٹ ڈال رہی ہے بلکہ پورے خطے میں سخت سردی اور شدید سردی کے دنوں میں حالات پیدا کر رہے ہیں۔ اگرچہ کم سے کم درجہ حرارت حیرت انگیز طور پر معمول سے اوپر رہا، لیکن پنجاب اور ہریانہ کے کچھ حصوں میں دن کا درجہ حرارت اوسط سے کافی نیچے گر گیا ہے۔ 3 نئے فوجداری قوانین کے خلاف ہڑتال کر رہے ٹرانسپورٹروں نے مرکزی حکومت کے ساتھ مفاہمت کر لی ہے۔ نئے قوانین میں ہٹ اینڈ رن کی سخت سزا کے خلاف ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز سراپا احتجاج کر رہے تھے۔ منگل کی شام مرکزی حکومت کے ساتھ میٹنگ کے بعد فی الحال ان پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہوم سیکریٹری اجے بھلا نے کہا ہے کہ ہٹ اینڈ رن کے قوانین ابھی لاگو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ڈرائیوروں سے کام پر واپس آنے کی اپیل کی۔ 10 سال قید اور جرمانے کے اصول پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ انڈین جوڈیشل کوڈ جو انڈین پینل کوڈ کی جگہ لینے جا رہا ہے، اس میں ایسے ڈرائیوروں کے لیے 10 سال تک کی سزا کا انتظام ہے جو لاپرواہی سے گاڑی چلا کر اور پولیس یا انتظامیہ کے کسی اہلکار کو حادثے کی اطلاع دیے بغیر جان لیوا سڑک حادثہ انجام دے کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ پیشہ ور ڈرائیورز ان دفعات کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں نے ہٹ اینڈ رن کے نئے قوانین کے خلاف اپنی ہڑتال جاری رکھنے سے پورے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل سمیت تمام ضروری اشیاء کی سپلائی ٹھپ ہو گئی تھی۔ عالم یہ رہا کہ ملک کے تمام اہم میٹرو شہر سمیت کئی جگہوں پر پیٹرول اور ڈیزل کی شدید قلت ہو گئی، جبکہ متعدد پیٹرول پمپ بند ہو گئے اور جہاں پمپ شروع تھے وہاں طویل قطاریں دیکھی گئی تھی۔ لیکن آج چہارشنبے کی صبح سے سب بحال ہو گیا۔ ٹرک ڈرائیوروں نے اپنی ہڑتال واپس لے لی ہے۔ ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ شہریت ترمیمی قانون 2019 کے قواعد لوک سبھا انتخابات کے اعلان سے کافی پہلے منظر عام پر لائے جائیں گے۔ نریندر مودی حکومت کی جانب سے لائے جا رہے اس CAA کے تحت بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آنے والے ان غیر مسلم تارکین وطن بشمول ہندوؤں، سکھوں، جینوں، بدھسٹوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو شہریت دی جائے گی، سوائے مسلمانوں کے جنہیں ان کے ممالک میں ستایا گیا ہو، جو 31 دسمبر 2014 سے پہلے ہندوستان آئے۔
दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट में सीएए की मंजूरी के बाद मुल्क के बाद हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाज फूट पड़ा था। अहदेदारों ने बताया कि हम अनकरीब सीएए के क़वायद जारी करेंगे। क़वायद के इजरा के बाद कानून पर अमल किया जा सकता है और अहल अफराद को हिंदुस्तानी शरीयत दी जा सकती है। तीन रियासतों में कामयाबी के बाद बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए वो एक जानिब जहां अयोध्या में मंदिर के हवाले से शुमाली हिंद के राय दहिंदगान को अपने पाले में करना चाहती हैं, वहीं जनूबी हिंद के वोटर्स को भी रुझाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए इसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए जनूबी हिंद का दौरा तरतीब दिया है। इस प्रोग्राम के तहत मोदी ने तमिलनाडु में तलबा से गुफ्तगू की, जबकि आज वो केरला में ख्वातीन के एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस दौरान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारती दास यूनिवर्सिटी के 38वें तकसीम असनाद की तकरीब से मोदी ने खिताब किया और तलबा को अवार्ड से भी नवाजा। इस मौके पर तलबा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये तकरीब इंतहाई खास है, क्योंकि नए साल में अवाम के साथ ये इनका पहला राब्ता है। मोदी ने कहा कि यूनिवर्सिटी का क़याम आम तौर पर एक कानून साजी का अमल होता है। नरेंद्र मोदी ने नालंदा और तक्षशिला की कदीम यूनिवर्सिटियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारी कौम और इसकी तहजीब हमेशा इल्म के इर्द गिर्द मरकूज रही है। उन्होंने कांचीपुरम, गंगईकोंडा, चोलापुरम और मदुरई में अजीम यूनिवर्सिटी की शानदार कारकर्दगी का भी तस्करा किया, जहां दुनिया भर से तलबा आते थे। इंडिया इत्तेहाद के अहम हलीफ झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन की रवां हफ्ते किसी भी दिन गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। इन क़यास आरायों का सिलसिला ईडी के नोटिस और झारखंड असेंबली की रुकनियत से पार्टी के सीनियर लीडर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद तेज हो गई है। अगरचे सरफराज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने निजी वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। ताहम इस सूरत हाल से वाकिफ ज़राए ने बताया कि हुक्मरान इत्तेहाद बीजेपी को अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। सरफराज अहमद का इस्तीफा भी इसी का हिस्सा है। इस दौरान वज़ीर आला के दफ्तर से ईडी को एक बंद लिफाफा भेजा गया है। काबिल जिक्र है कि ईडी ने ज़मीन के एक मुबैना घोटाले के मामले में झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को आखिरी नोटिस भेजे हैं, जिसके बाद जांच एजेंसी के सामने इनके पेश न होने के दरवाजे बंद हो गए हैं। ईडी ने जुमा 29 दिसंबर को 7वां नोटिस भेजा था, जिसमें खुद हेमंत सोरेन को वक्त, तारीख और जगह तय करने की सहूलत दी गई। ईडी ने 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है और साथ ही ये भी कहा है कि वो हफ्ता भर के अंदर इनकी ज़ब्तशुदा जायदाद के ताल्लुक से पूछगछ करना चाहते हैं। इस नोटिस के बाद रियासत में सियासी हलचल में इजाफा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी को इनके एक तबसरे पर वार्निंग दी है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम अपनी मस्जिद से महरूम हो गए और तुम देख रहे हो कि वहां क्या हो रहा है। क्या तुम्हारे दिल में दर्द नहीं उठता? सुरेंद्र जैन ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी जिस तरह श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर बार बार तनकीद कर रहे हैं, वो तहक़ीर अदालत के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि मैं ओवैसी जैसे कायदीन को ये इंतबाह देना चाहता हूँ, बार बार मुसलमानों को ना भड़काएं। ये लोग मुस्लिम समाज को ऐसी तारीख गली में ढकेल रहे हैं जिसका रास्ता तरक्की की तरफ नहीं जाता। सुरेंद्र जैन ने मजीद कहा कि मैं ओवैसी के बयान की मजम्मत करता हूँ। हमने अपने लीगल सेल की टीम से कहा है कि वो इस बात का जायज़ा लें कि आया इनका बयान कानूनी हद से तजावीज़ तो नहीं करता। क्या ये दस्तूर और क़ानून की खिलाफ वर्जी के मुताबिक है? अगर ऐसा पाया जाए तो हम इन कायदीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर सकते हैं। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि असदुद्दीन अवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की है। इनके बयानात न सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ बल्कि इनका मकसद मुस्लिम नौजवानों को उकसाना है। गुप्ता ने कहा कि मगरबी बंगाल में हालिया रैली के दौरान की गई असदुद्दीन अवैसी की मुतनाज़ा तकरीर में मुल्क में मसाजिद की हालत और मुसलमानों के मजमूई मौक़िफ़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। गुप्ता के मुताबिक राम मंदिर के बारे में ओवैसी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात गलत मालूमात फैलाने के वसीतर एजेंडे का हिस्सा है। जमात-उल हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने रियासत मणिपुर में तशद्दुद का दायरा बढ़ने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ये बात मणिपुर के लेवलिंग जिला थोबाल में 4 मुसलमानों की अफसोसनाक शहादत के तनाजुर में कही है। अस्किरियत पसंदों ने गुज़िश्ता शाम लेलेम चनगांव में धावा बोला और वहां मौजूद लोगों पर गोली चला दी। फायरिंग के नतीजे में कम से कम 14 अफराद को गोली लगने से जख्मी हो गए। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। मरने वालों में मोहम्मद दौलत 30 साल, एम सिराजुद्दीन 50 साल, मोहम्मद आजाद खान 40 साल और मोहम्मद हुसैन 22 साल शामिल है। वाज़ेह है कि इस इलाके में
मेती बंगाल कौम आबाद है। यहाँ के मुसलमान जो अभी तक मेती और कोकी ग्रुपों के दरमियान नस्ली तसादुम में शामिल नहीं हुए, अब इनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जो रियासती हुकूमत की गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला हुकूमत हिंद अमित शाह और रियासत के वज़ीर आला एन बिरेन सिंह को खत लिखकर कहा गया है कि इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना रियासत के बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बेकायदगियों की जांच में कांग्रेस हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि कालेश्वरम स्कैम की सीबीआई जांच के लिए मरकज को मकतूब रवाना करने से गुरेज क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर को बचाने कांग्रेस हुकूमत बहाने तलाश कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन में रहकर कांग्रेस ने सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया था, अब जबकि वो इख्तिदार में है, मरकज को सीबीआई तहकीकात के लिए मकतूब रवाना कर सकती है। किशन रेड्डी ने दावा किया कि हुकूमत के मकतूब पर मरकजी हुकूमत 48 घंटे में सीबीआई जांच का ऐलान कर देगी। बीआरएस और कांग्रेस के एक होने का इल्जाम आयद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अदालती तहकीकात का मकसद केसीआर को बचाना है। उन्होंने कहा कि असेंबली में रेवंत रेड्डी हुकूमत को वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, लिहाजा बीआरएस से खुफिया मुफाहिमत कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मजलिस की सालिसी के नतीजे में मौजूदा साबिक चीफ मिनिस्टर के दरमियान मुआहदा हो गया है। कांग्रेस, मजलिस और बीआरएस तीनों एक हैं और केसीआर की बदउनवानियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि करप्शन और बेकायदगियों के मामले में कांग्रेस हुकूमत संजीदा नहीं है। किशन रेड्डी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के लिए मार्च के पहले हफ्ते में शेड्यूल की इजराई मुमकिन है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी रिवर फ्रंट को आइंदा 3 साल में तरक्की देने के लिए ओहदेदारों को हिदायत जारी की। मूसा नदी रिवर फ्रंट जो 55 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, पहले मरहले में हैदराबाद शहर के हुदूद में इसे तरक्की दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने हमदा के ओहदेदारों के साथ नानकराम गुड़े में हमदा के दफ्तर में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नजवनस दाना किशोर, जॉइंट मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अमरापालीटा और दफ्तर चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अजीत रेड्डी और दीगर ओहदेदार इस इजलास में शिरकत किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मूसा नदी रिवर फ्रंट के लिए एक मिसाली डिज़ाइन का इंतखाब करें, ऐसा डिज़ाइन जो तमाम शहरियों के लिए मुनासिब हो सके। इस डिज़ाइन में तमाम सहूलतें शामिल होनी चाहिए, जिसमें एम्यूजमेंट पार्क, आबशार, बच्चों के लिए वाटर स्पोर्ट्स, छोटे कारोबार करने वालों की सहूलत, तिजारती इलाके, शॉपिंग मॉल्स के लिए भी जगह हो सके, ताकि समाज के तमाम तबकात को सहूलत हो सके। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मुल्क के दीगर मुकामात पर और बैरूनी ममालिक में भी इस तरह के रिवर फ्रंट के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लें, ताकि डिज़ाइन की तैयारी में आसानी हो सके। नीति आयोग के नायब सदर नशीन सुमन कुमार की क़यादत में मरकजी इदारे के वफ़द ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुलाकात की और मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत की। इमदाद, बहामी वफाकियत, तरक्याती तरजीहात, ज़राए के तकसीम, स्किल डेवलपमेंट, शहरी तरक्की व दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला तेलंगाना ने रियासत की तरक्याती तरजीहात की तफसील पेश की। नीति आयोग के ओहदेदारों ने रियासत की मखसूस ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए पॉलिसी तैयार करने का तयक़ुन दिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रियासती हुकूमत के अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम्स के तहत स्कीमात से इस्तेफादे के लिए शहरियों की दरख्वास्तों के अदखाल का जायजा लेने मराकिज़ का दौरा किया और इन मराकिज़ पर अवाम की मदद के लिए मजलिस के कायम करदा हेल्प डेस्क पर काम करने वाले कारकुनों को हिदायत दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवाम की मदद करें, ताकि वो अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल तौर पर दाखिल कर सकें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी हल्का असम्बली याकुतपुरा और हल्का असम्बली नामपल्ली के तहत मुख्तलिफ डिवीज़नों में कायम करदा अवामी हुक्मरानी के तहत फॉर्म्स के अदखाल के मराकिज़ का मुआयना किया। ये वो 2 हल्के असम्बली है जहाँ मजलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद बिल्कुल कम वोटों से कामयाबी मिली है। यहाँ पर शिकस्त यकीनी थी, जिसके बाद इन 2 हल्कों में मजलिस फिर से एक मरतबा सरगर्म नज़र आ रही है, जहां असदुद्दीन अवैसी और दूसरे कायदीन दौरे कर रहे हैं और अवाम की सहूलत के लिए काम करने की तवज्जो दिला रहे हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी आज हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तोसी के सिलसिले में अहम जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट मेट्रो रेल को बड़ा ओल्ड सिटी से गुजारते हुए नजरसानी शुदा मंसूबे की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ट्रैफिक का जायजा लें। पुराने शहर में पहले मरहले की रूट की तोसी के कामों के सिलसिले में दारुशफा तक शालीबंडा सड़क की तोसी के कामों के लिए सड़क को 100 फीट वसी बनाने की तजवीज़ का जायजा लें। चीफ मिनिस्टर ने आज हैदराबाद मेट्रो रेल के डायरेक्टर NVS रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, IG इंटेलिजेंस
शिवधर रेड्डी और दफ्तर चीफ मिनिस्टर के ओहदेदार शाहनवाज कासिम और दीगर के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेट्रो रेल की तोसी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरीन को सहूलत पहुंचाने के इक़दाम किए जाए। इसके लिए कमिश्नर हमदा से इश्तराक व ताउन करते हुए मेट्रो रेल की तोसी का मंसूबा तैयार करें। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने हल्का असेंबली नामपल्ली के विजयनगर कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड पर वाक़ प्रजा पालना सेंटर का मुआयना किया। इनके हमरा जिला कलेक्टर अनुदीप, कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज, जोनल कमिश्नर वेंकटेश, हल्का असेंबली नामपल्ली के कांग्रेस लीडर फेरोज खान और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर ने अवाम से दरख्वास्तों की इजराई और दीगर सहूलतों से मालूमात हासिल की। अवाम ने इन्हें बताया कि दरख्वास्तों की इजराई और वसूली में इन्हें कोई मुश्किलात नहीं है। इंचार्ज हल्के नामपल्ली फेरोज खान और वजीर ट्रांसपोर्ट को बताया कि इनके हल्के के 6 डिवीजन में 28 मराकिज़ कायम है, जहाँ इनकी टीम इन मराकिज़ के ओहदेदारों के साथ भरपूर ताउन कर रही है।